عوام دشمن بجٹ اور کٹپتلی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سکھر میں برس پڑے. کہا پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. وفاق سندھ کے حقوق چھین رہا ہے. چاہتے ہیں عوام کے مسائل حل ہوں. حیدرآباد میں 2 کم سن بچوں کا قتل. رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ مقتول بچوں کے گھر پہنچ گئے. غم زدہ خاندان سے اظہار تعزیت. کہا پولیس لاپتہ بچوں کو بروقت تلاش کرتی تو یہ سانحہ نہ ہوتا. FIR کا تاخیر سے اندراج پولیس کی نااہلی قرار دے دی. کراچی میں نیوز اینکر مرید عباس قتل کیس کی تحقیقات جاری. قانونی ماہرین کہتے ہیں حکومتی عدم توجہی اور ناقص نظام کے باعث غیر قانونی سرمایہ کاری پر مبنی کاروبار چل رہا ہے. اس طرح کے واقعات روکنے ہیں تو اقدامات کرنا ہوں گے. حکومتی اداروں کی ناکامی بھی ہے، نیگلیجنس ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان ہینڈ اور بہت سے لیوکریٹو کام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سے بھگتا لیں کافی ہے. تو نئے کام کو ایکسپلور نہیں کرتے جب تک کہ کوئی جا کے کمپلیٹ نہ کرے اور پوری ہسٹری نکال کے نہ دے اور ملزم پکڑا کر بھی دے. صادق آباد ٹرین حادثہ سگنل سسٹم میں خرابی کے باعث پیش آیا. ڈرائیور کو سگنل گرین اور کانٹا لوپ لائن کا دیا گیا. حادثے کی ابتدائی تحقیقات رپورٹ کل پیش کی جائے گی. لائنوں کی مرمت اور ملبہ اٹھانے کا کام جاری. حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 24 ہو گئی. ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ارشد ملک کے ویڈیو لیک کا معاملہ سپریم کورٹ میں کیس مقرر. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 16 جولائی کو سماعت کرے گا. مبینہ ویڈیو معاملہ جج ارشد ملک کو کام سے روک دیا گیا. وزارت قانون میں رپورٹ کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم اور وزارت قانون صرف قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر قانون فروغ نسیم کی پریس کانفرنس. کہا جج صاحب کے بیان حلفی سے لگتا ہے کہ انہیں بلیک میل کیا گیا اور رشوت کی پیشکش بھی ہوئی. ٹرائل کے دوران نواز شریف کے ساتھیوں ناصر جنجو اور مہر جلانی نے رشوت کی پیشکش کی. مجھے رائے بھی لے جایا گیا. نواز شریف سے ملاقات کرائی گئی. نواز شریف نے کہا ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا بیان حلفی. کہا 50 کروڑ رشوت کی آفر بھی کی گئی. مشن چیئرمین سینٹ کی تبدیلی. اپوزیشن کے نہلے پر حکومت کا دہلا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. 26 سینیٹرز نے دستخط کیے. شبلی فراز کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمین ہماری سپورٹ کے قابل نہیں. سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا. کراچی میں نرسز کا احتجاج 90 روز بھی جاری. سندھ بھر میں گورنمنٹ ہسپتالوں کے نرسز سٹاف کی جانب سے پریس کلب کے باہر دھرنا. مظاہرین کی سندھ اسمبلی کی جانب پیش قدمی. پولیس رکاوٹ بن گئی. مظاہرین کی نعرے بازی. کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف رینجرز کی کارروائی. لیاری میں چھاپا. گینگ وار کا چھپایا گیا اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. کراچی کا لیاقت آباد کچرا کنڈی بننے لگا. انتظامیہ کی عدم توجہی، گندگی، غلاظت اور بہتا پانی شہریوں کا مقدر. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر سے بیماریاں پھیلنے لگی. عوام پریشان. بلدیاتی نمائندوں پر نالاں. السلام علیکم. آج 6 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں سعدیہ سیمسن. کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز. کراچی میں نیوز اینکر مرید عباس قتل کیس میں پیش رفت. فراڈ کے بڑے اسکینڈل میں متاثرین کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. پولیس کے مطابق متاثرین کی بڑی تعداد میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہے. بینکرز اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین بھی فراڈ سے متاثرہ افراد میں شامل ہیں. اسی بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد سے. شہریار بتائیے گا کہ اب تک مرید عباس قتل کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟
बिल्कुल सादिया, ऐसा ही सीन हुआ है मुरीद अब्बास कत्ल केस के अंदर। जो पेशरफ्त हुई है उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है वो जो फ्रॉड हुआ था आतिफ कत्ल केस के हवाले से, उसके अंदर जो है वो 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, जिसके अंदर एंकर्स की भी बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर शामिल है। और जो मेन जो बंदे थे जिसके अंदर मुरीद अब्बास था और इसी तरह 3-4 और एंकर थे जो कि इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन इनके पीछे उनके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त जो थे जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे और सरमायाकारी की थी, वो पैसे तकरीबन करोड़ों की तादाद में जो है वो पहुंच चुके थे और करोड़ों के अंदर जो है सरमायाकारी हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई साइन नहीं है, किसी का नहीं पता कि किसने कितने पैसे लगाए थे, ये तो मुंह जुबानी कहा जा रहा है कि किसी ने 20 लाख दिए, किसी ने करोड़ दिया, किसी ने 50 लाख दिए, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सामने आए। इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि FIA की जो है वो मदद तलब की जाए ताकि पता चल सके कि आखिर कितनी की सरमायाकारी हुई थी और कुल टोटल कितने पैसे। मुझे ये बताइएगा कि चूंकि इसमें मीडिया पर्सन्स हैं और इसके अंदर बैंकर्स भी हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, किसी लिखत पढ़त के बगैर, किसी सिग्नेचर्स के बगैर कैसे कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट किए, किसी ने 10 लाख। तो अभी क्या इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, या पुलिस ये कह रही है कि इस हवाले से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर ये सारा काम किया जा रहा था, एतिमाद के ऊपर ये सब काम किया जा रहा था। डॉक्यूमेंट्स कोई फाइल नहीं किए गए कि किसने कितना पैसा दिया। अब मुरीद अब्बास की अगर बात की जाए, मुरीद अब्बास ने कहा कि मैंने 50 लाख रुपए दिए, मैंने रिश्तेदारों से पैसे लिए, किसी ने 30 दिए, किसी ने 20 लाख दिए, दे देकर इस तरह करके करोड़ों के अंदर वो पैसे हो गए, लेकिन कोई लिखा नहीं गया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं इसके ऊपर साइन किए गए कि किसने कितने दिए, क्योंकि ये चेन बनती गई, पीछे बनती गई और 100 की तादाद, मतलब 100 से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि आखिर भाई ये कितने पैसे दिए थे, किसने कितने लाख दिए, किसने कितने करोड़ दिए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसी वजह से अब FIA की मदद तलब की जा रही है कि आखिर पता चल सके कि किसने कितने पैसे दिए थे, कुल टोटल कितना पैसा लगा था, कितने की सरमायाकारी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मुल्जिम आतिफ है, सबसे ज़्यादा उसका बयान जब सामने आएगा पता चलेगा कि आखिर कितने कुल टोटल जो पैसे। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि मुल्जिम जो है आतिफ जमान, उसका जो बयान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि अस्पताल से उसे कब यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा और उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी तो उनकी इमदाद जो है वो दी जा रही है उनको। जैसे ही उनके ज़ख्म जो वो ठीक होगा और वो इस चलने के काबिल होंगे, उसके बाद उनको अदालत लेके जाया जाएगा और उसके बाद जो उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी वक्त जो है सारी बात सामने आएगी कि आखिर कितनी सरमायाकारी हुई थी। क्योंकि इसके अंदर ये कहा जा रहा है सिर्फ कराची नहीं, दीगर शहरों के लोग जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं और इसके आगे तक जो नेटवर्क है वो दीगर मुल्कों के अंदर से भी जो है वो कहा जा रहा है कि वहाँ तक भी जो है वो सरमायाकारी की गई है। अब जब तक आतिफ जो मुल्जिम है उसका रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आएगा, बयान रिकॉर्ड नहीं होगा, तब तक जो है वो सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं होगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा साजिद, जिस तरह से आपने कहा कि FIA को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो क्या बताया जा रहा है कि कब तक जो है FIA जो है कार्रवाई का आगाज़ करेगी? अभी तक जो है वो कहा यही जा रहा है कि जब तक आतिफ जो मुल्जिम है वो बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाता और जब तक अदालत उसको नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद जो है वो उसी वक्त जो है वो सूरत-ए-हाल जो है सामने आएगी। क्योंकि अदालत में अभी तक उसको ले जाया नहीं गया मुल्जिम को, मुल्जिम वहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद जो है वो बाकी की कार्रवाई जो आगाज़ होगा और सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी और उसी वक्त जो है FIA जो है वो भी इन्वॉल्व होगी। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा कि आतिफ के नाम का चूंकि बार बार जिक्र हुआ और समहाउ जितने लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने आइदर मुरीद अब्बास के थ्रू किया था या डायरेक्टली आतिफ के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कोई और नाम सामने आ सका है? क्योंकि इतनी बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट होती है, अगर ये इतना बड़ा कोई जाल था व्हाटएवर, तो कोई और लोग भी तो होंगे, किसी और विक्टिम ने कोई दूसरा या तीसरा नाम लिया हो अभी तक? देखिए, अभी तक जितनी भी कार्रवाई की जा रही है उसके अंदर मुरीद अब्बास का नाम सबसे पहले है। उसके दोस्त थे जो कि मुरीद अब्बास के साथ ही जो इनको कत्ल किया गया था वो भी उनके साथ है। उनका मीडिया से तो खैर कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुरीद अब्बास के जो लिंक के अंदर जो दोस्त यार ज़्यादा थे वो ज़ाहिर है वो मीडिया इंडस्ट्री के थे, क्योंकि मुरीद अब्बास खुद एक मीडिया का नुमाइंदा था। इस वजह से उनका जो सर्किल था वो ज़्यादातर जो है वो मीडिया के लोग थे। तो मीडिया के जितने भी एंकर थे सबसे ज़्यादा वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जबकि 50 से ज़ायद जो मेरे ख्याल है वो मीडिया के लोग हैं। उसके अलावा जो है वो बाकी रिश्तेदार हैं और उनके यार दोस्त हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। 100 विक्टिम्स तकरीबन अब हो गए हैं, जो पेशरफ्त हुई है उससे ये पता चल सका है और उसमें हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि तकरीबन इसमें 50 से ज़ायद लोग जो हैं उनका ताल्लुक मीडिया से ही है, जो कि आस पास से मुरीद अब्बास को जानते थे या उनके फ्रेंड सर्कल्स में थे। बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद, इस हवाले से आपने हमें बताया। मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमती अदम तवज्जुही और नाक़िस निज़ाम के बायस गैर कानूनी सरमायाकारी पर मबनी कारोबार चल रहा है।
ये एक स्कैम है और इनोसेंट लोग, लालची लोग इसमें फंस जाते हैं। और इस बंदे का कोई कारोबार नहीं था, वो लोगों को कहता था मेरा टायरों का काम है, कोई टायर का कारोबार नहीं था इसका। एक तो हुकूमती अदारों की नाकामी भी है, नेग्लिजेंस है, इसलिए कि उनके पास इन हैंड और बहुत से ल्यूक्रेटिव काम होते हैं, तो वो कैसी से भुगता लें काफ़ी है। तो नए काम को एक्सप्लोर नहीं करते जब तक कि कोई जाके कंप्लेंट ना करे और पूरी हिस्ट्री निकाल के ना दे और मुलजम पकड़ा कर भी दे। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ट्रेडर्स की स्ट्राइक है और जिसमें अपोजिशन की कोई काल नहीं है। जो बातें हम कह रहे थे अब वो बातें साबित हो रही कि ना इनके पास कोई विजन था, न इनकी कोई तैयारी थी, इनको इंस्टॉल कर दिया गया। वो जो हम कहते हैं ना सिलेक्टेड, इनको किसी ने सेलेक्ट करके यहां बिठा दिया, उसके लिए ताने बाने बुन दिए और आज हुकूमत वक्त इस परेशानी में है, उनके पास पाकिस्तान के अवाम को देने को कुछ नहीं है। ये PTIMF बजट जो है इसने यकीनन अवाम की चीखें निकाल दी और अब ये इनके पास सिर्फ एक चीज रह गई है, रोज नित नए बहाने से कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे। ये बड़े अपोजिशन को गालियां, ये बड़े करप्ट हैं, ये बड़े करप्ट हैं। 11 महीने में कोई एक चीज ये साबित नहीं कर पाए किसी जमात की क़यादत के ऊपर, और सिर्फ अदालतों के जरिए, नैब के जरिए, जिसको नैब गर्दी भी कहा जा रहा है और इसके पीछे भी कुछ है, उसका भी बहुत जिक्र होना शुरू हो गया है। ये समझने और सोचने की जरूरत है। आज पाकिस्तान की सरकार को जिस तरह खुलेआम मीडिया के ऊपर यलगार हुई पड़ी है, असेंबलियों के ऊपर यलगार हो रही है और निहायत ढटाई से कहा जा रहा है। कल जो वजीर आजम साहब जिनको डाकू और चोर कहते थे आज उनके इत्यादी हैं, जिनको पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे और NRO के सबसे बड़े बेनिफिशियरी MPM उनके इत्यादी हैं, जिनको वो सबसे बड़े लोटे और मुफाद परस्त कहते थे, आज वो उनकी जमात के अंदर जाके बना लिए बैठे हैं। वो सारे आफियत में हैं, वो सारे उनको कबूल हैं और अब खुद उन्होंने और उनको रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो एक दफा फिर से वफाक को निशाना बना रहे थे, तनकीद का कह रहे थे कि इनका कोई विजन नहीं है, अब तक कुछ भी साबित नहीं कर सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कराची में रेंजर्स ने लियारी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान गैंग वॉर का छुपाया गया असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। रेंजर्स का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर लियारी के मोहल्ले शाहबैग लेन में छापा, दौरान तलाशी छुपाया गया असलहा और एमुनेशन बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाले असले में 2 LMG राइफल, 2 किलाशनकॉफ, 3 8mm, 1 रिपीटर और 9mm पिस्तौल के अलावा 25 अदद आवान बम और मुख्तलिफ बोर की हजारों गोलियां शामिल हैं। रेंजर्स के मुताबिक असला गैंगवार अनासिर की जानिब से छुपाया गया है, जिसका मकसद अमन व अमान का नुकसान पहुँचाना है। कराची समेत सिंध भर की नर्सेज का एहतजाज 9वें दिन में दाखिल हो गया। नर्सेज ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध असम्बली का रुख कर लिया। महकमे सेहत ने मुतालबात का जायजा लेने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कराची से रिपोर्ट करेंगे कामरान शेख। कराची प्रेस क्लब पर सिंध भर की नर्सेज का एहतजाज जारी। सिंध भर से जमा होने वाली नर्सेज ने सिंध असम्बली के बाहर मुतालबात के हक में नारेबाजी की। नर्सेज ने नोटिफिकेशन के इजरा तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। मुझे 35 साल हो गए, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। हमें अपना हक लेके रहना, भले पुलिस हम पे लाठी चार्ज करे या चैलेंज करे, कुछ भी करे, हम डट के मुकाबला करेंगे। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हुए। पुलिस ने रुकावटें लगाकर नर्सेज को आगे बढ़ने से रोक दिया। सिंध नर्सेज अलायंस के रहनुमा एजाज कलेरी का कहना था कि मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हम सिर्फ उनको अपना जो है वो तहरीरी मुआहदा याद करवाना चाह रहे हैं और उस तहरीरी मुआहदे को इम्प्लीमेंट ना करके हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ा दिए हैं इन्होंने, और जो मरीज सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने नर्सेज के मुतालबात का जायजा लेने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी नर्सेज की तरक्कियों से मुताल्लिक महकमा खजाना से मुशावरत करके 7 रोज में अपनी तजावीज़ देगी।
कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। कराची का इलाका